warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to our respected chairman sir, correspondent ma'am, parents, teachers and my dear students. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Thank you for all for sharing your precious time with us. Once again, I welcome you all for the special Independence Day of Green Valley Schools. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. My name is Saif. I am studying second standard. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दहली रे जानवरों से बचने की दुआ. औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़. अस्सलामु अलैकुम. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rufa. I am studying third standard. Hadith number 3. मुआमिलात बद मन गश्शा फलैसा मिन्ना. तर्जुमा जो धोखा देता है वो मुसलमानों से भी नहीं. अस्सलामु अलैकुम. தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதி சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. My name is Kishika. UKG. திருக்குறள். அக்கரமுள்ள ஏத்தலாம் ஆதி பகவான் உதற்றே உலகு. நன்றி. My name is Siddharth. I am studying second class in GVS CBSE. Word of the day. Today word is integrity, meaning the quality of being honest and having moral principles. Usage, a gentleman of complete integrity. Thank you. கொடிப்பாட்டு. பாரத தேவியின் மணி கொடி பாரி பக்தியுடன் அதை வணங்குவோம் பாரி. பாரத தேவியின் மணி கொடி பாரி பக்தியுடன் அதை வணங்குவோம் பாரி. வீரர்களுடன் பொருள் ஆவியும் கொடுத்து சீரமயடி சிறை அனைத்தையும் பொறுத்து. வீரர்களுடன் பொருள் ஆவியும் கொடுத்து சீரமயடி சிறை அனைத்தையும் பொறுத்து.
பரிசுத்த தியாகத்தை காட்டிடும் வெண்மை பலவல மூலத்தென குறித்திடும் பச்சை பரிசுத்த தியாகத்தை காட்டிடும் வெண்மை நலமுடன் பக்தியை ஊட்டிடும் காவி நலமுடன் பக்தியை ஊட்டிடும் காவி நடுநிலை பண்பினை விளக்கிடும் சக்கர் பாரத தேவியின் மணிக்கொடி பாரி பக்தியுடன் அதை வணங்குவோம் பாரி. Good morning to all. I am P. Dakshan Priyan. I am telling about our national pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and bright leaders. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In the air, well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you. आज़ादी का अमृत महोत्सव. Wishing you all a happy 75th Independence Day. Let us remember the fighting spirit, never give up attitude, and the sacrifices of our freedom fighters and soldiers who led their life for our Mother India. While every country have their own speciality, our India is known for values, human values. As said by Mahatma Gandhi, our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. We are proud of being Indians. Let our nation be proud of us. Let us move from I am to Vayam, I to we. Let us grow and recommit to take lead role and contribute our part in our re-emerging country. Once again, I wish the enthusiastic students, parents, dedicated and committed management, passionate teachers, staff, the entire family of Green Valley Group of Educational Institutions a happy Independence Day. Jai Hind. Good morning to all Green Valley School students. On behalf of Lead family, I wish you all a happy Independence Day. Thank you. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Happy Independence Day to all. Assalamu alaikum and good morning to all. My name is Sania Muskan. I am studying 10th standard in Green Valley School. I am going to sing a song for Independence Day. और आज में तेरे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हफ्ता ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था ये तेरी जमीन तेरे फूल सही तो सजते संवरते हैं रांझे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरे हीर तो डरते हैं रांझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरे नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ये मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरे आल सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे ये मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बही फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरे नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू थैंक यू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुहतरम सदर साहिबा और असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात
सामईन, जैसा कि आप जानते हैं आज यौम आज़ादी है। हर साल हम यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1940 बरसात का सूरज हमारे लिए ग़ुलामी की तारीकी से नजात और आज़ादी की खुशियों का पैगाम लेके तुलू हुआ था। यौम आज़ादी कहने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप जानते हैं कि ये आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई? क्या जालिम अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी तोहफे में पेश कर दी? नहीं नहीं मेरे भाइयों, इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमाओं उलमाओं ने क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त किए हैं। इनमें से एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मुताबिक आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ, ज़रा गौर से समाअत फरमाएं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 10 दिसंबर 1870 पर 8 रामपुर में हुई। 2 साल की उम्र ही थी कि वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी वालिदा बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कमी रहने ना दी। इब्तिदाई तालीम रामपुर और बरेली में पाई और आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। बीए का इम्तिहान शानदार और कामयाबी के साथ पास किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। ICS की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की और कलकत्ता जाकर अंग्रेज़ी अखबार जारी किया। मौलाना की लाजवाब जहन ताबी की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी बड़े शौक़ के साथ पढ़ा जाता था। आज़ादी की लड़ाई में मौलाना की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसकी खातिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कई साल जेल में गुजारना पड़ा। तो इन जैसे बुज़ुर्गों और बड़े बड़े बहादुरों की वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ और हम लोग हमेशा इनको याद करना चाहिए। अगर वक्त मिले तो हमें भी इन लोगों की तरह इस मुल्क की खातिर जद्दोजहद करना चाहिए। बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़त माफ़ चेयरमैन साहिब, करस्पॉन्डेंट साहिबा, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नवीदा है। मैं ग्रीन वैली स्कूल में उर्दू कुरान दीनियत का उस्ताद हूँ। आज यौम आज़ादी के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले। शहीदों के दिल में थी वो जो आला याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो जो आला याद कर ले, जिसमें बहाकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों की वो धारा जो याद कर ले, देशभक्तों की खून की वो धारा जो याद कर ले। आज यौम आज़ादी का दिन है। आज यौम आज़ादी है। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। हिंदुस्तान 1940 बरसात को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा था। हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी की पहली जंग 1850 बरसात में लड़ी, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। चंद एक वजूहात की वजह से हमारी ये जंग नाकामयाब हो गई और फतह याब होने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर बेहद जुल्म शुरू कर दिए। 30-40 साल खामोश रहने के बावजूद
मुसलमानों ने, हिंदुस्तानियों ने आज़ादी के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मास्टर राम सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेज़ों को, बड़े बड़े लोगों ने साथ देने का ऐलान कर दिया। इन सब लोगों की खिदमत और कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए मजबूर हो गई और आखिरकार 15 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को तकसीम करके अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और यहाँ से वो चले गए। इसी तरह 15 अगस्त 1940 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हम सभी हिंदुस्तानी हर साल 15 अगस्त को ये इस दिन खास दिन याद से माना जाता है, तकरीर से मनाते ही, जिसे यौम आज़ादी के नाम से जाना जाता है। फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, जिसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि चमन अपना वतन अपना, के चमन अपना वतन अपना, जमीन और आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद। सुप्रभात मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरा नाम फातिमा। आज मैं हमारे तिरंगे के बारे में कुछ लाइनें व्यक्त करना चाहता हूँ। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उस राष्ट्र के स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। इसी प्रकार से हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग व्यवस्थित है। केसरी रंग बहादुरी एवं बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी में जो नीले रंग का एक चक्र बना होता है, इसे अशोका चक्र कहते हैं। अशोका चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग विद्यमान हैं। इसी वजह से इसका नाम तिरंगा रखा हुआ है। तिरंगा भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतवासी के लिए वो बहुत महत्व रखता है। यह झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हमें सदैव ही इसका सम्मान करना चाहिए। शुक्रिया। भारत माता की जय। सबको नमस्ते। मैं ग्रीन वैली स्कूल का हिंदी अध्यापिका विक्टोरिया। मैंने सुभाष चंद्र जी के बारे में बोलने आई हूँ। नेताजी सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1887 में ओडिशा के कटक के संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस का पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनको माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहकर उन्होंने भारतीयों के खिलाफत के लिए प्रेरित किया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनको 11 बार कारावास हुआ। उन्होंने हमेशा हिंसा में विश्वास किया और ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता पाने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। बताया जाता है कि 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। वह भारत की मातृभूमि के लिए अपना घर और आराम हमेशा छोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनको महान योगदान प्राप्त के इतिहास को अविस्मरणीय है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस का तौर पर मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय
जय हिंद। Assalamu alaikum. Today, on this auspicious day of Independence Day, I'd like to thank our chairman, Mr. Javed Khan sir, our correspondent ma'am, Mrs. Aisha Javed ma'am, principal, students, teachers, non-teaching staff who has made this program successful event. Thank you. National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे दागे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे